So, hello and welcome to my YouTube channel. So, before we begin, here's a quick disclaimer that I'm not a SEBI registered analyst and this channel is not associated with any Telegram or WhatsApp group. I do not provide stock tips, calls, or signals. The purpose of this channel is purely educational to help you become an independent and a confident trader. Okay, so this channel will be in Hindi and English and I'll keep juggling between the two. So let's begin. So we will start the first video by analyzing yesterday's chart and we'll see how yesterday's chart helped us today. ठीक है, तो here I'll be using a 5-minute का chart. You can use 3 minute, 1 minute, 15 minutes or any minute you feel comfortable with. And I'll be using 9 EMA. So you can use any EMA above 5. You can use 7, 8, 9, 10, 11, 12, whatever. But not more than 30 or 25. Because then the range would become big. Okay. So let's start and see what has happened yesterday and how we traded the yesterday's market. So here we are not predicting what is going to happen tomorrow, but I'll be helping you how to take decisions in the live market and how to read the chart. Okay, so forget everything what has happened day before yesterday. परसों जो भी हुआ वो सारा कुछ भूल जाओ, कल से will be starting. Okay, so here we have 5-minute का chart and as you can see when the market breaks day low, जब कल का डे लो टूटता है तो क्या होता है? What we will do? We will draw a level, a range, not a level, a range. Because कोई किसी पॉइंट पे बेच रहा है, कोई किसी पॉइंट पे बेच रहा है. Market is not being regulated by one person. There are numbers of people. Yeah, हमें नहीं पता कितने लोग हैं. How many people are doing their daily transactions on the in the stock market. ठीक है, so as you can see, forget this previous day low because previous day low is also a significant level to look for, but as for now just forget it. So we are assuming that this is a fresh start and the market has given a clear breakdown by breaking and closing the day low, which is the 5-minute ka low. So what we'll do, we'll draw a range of 50 points. And we will wait for the price to test that level because that will be the confirmation of that trend. A high has formed, a lower high has to be formed to continue a downtrend. ठीक है, तो जब ये मार्केट वापस से इधर को आएगा so we will short it. Okay, आप कुछ भी देख के शॉर्ट कर सकते हो. If you are trading with candlestick, if you are trading with price action, if you are trading with any EMA, you can use these and the level together to get a confirmation of the trade. ठीक है, तो जब आप देखें ये डे लो टूटा, if you would have entered here itself, where would you keep this stop loss? आप stop loss क्या इधर इसके ऊपर रखेंगे? ये रेंज कितना बड़ा हो जाएगा आपका, आप इतना लॉस ले पाएंगे नहीं. तो इसीलिए वी हैव टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट टू हैपन. तो आप देखिए ये रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट फिर यहाँ से ये नेगेटिव कैंडल दिखाया, आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं या जब ईएमए के नीचे प्राइस चलने लगा आप यहाँ से शॉर्ट कर दिया. ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यही रहा. अभी अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इज वी हैव क्रिएटेड अ रेंज ऑफ से 60, 70, 80 points and we will extend it until and unless the market starts sustaining above the range. So what does it mean? It means people or entities who sold the market at this level are still active unless and until the range is intact. अभी जब मार्केट इसके ऊपर आकर के सस्टेन करने लगेगा तो जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा है वो अपने पोजीशन काटना शुरू करेंगे और मार्केट विल कंटिन्यू टू मेक लोअर हाइज एंड हायर हाइज और वो ऊपर की तरफ जाने को लगेगा. ओके, सो वी आर अज्यूमिंग दैट 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर दे वुड हैव केप्ट देयर स्टॉप लॉसेस. मान लेते हैं कि ये जो हाई है यहाँ से जो सेल आया है ये इधर ही किधर इसके ऊपर किधर तक स्टॉप लॉस है. सो एंड अनटिल एंड अनलेस दिस लेवल इज नॉट ब्रोकन
this is a significant level for us and we will keep it extending and extending unless and until it is broken. यहाँ तक समझ में आ गया. एंड वी विल कीप अ नोट. अगर अपन भूल जाते हैं ये कि काफ़ी नीचे चला जाता है बाजार और अपन भूल जाते हैं कि यहाँ पे एक लेवल चला आ रहा है पीछे से, सो वी कैन सिंपली कीप अ नोट हियर और वी कैन राइट ऑन द चार्ट और इन आवर नोटबुक. ठीक है, तो अभी समझो कि परसों का दिन ये नीचे ही ख़त्म हो गया. ठीक है, अभी अपने पास क्या क्या है, आज का दिन शुरू होता है वैसे ही कल का दिन शुरू होगा. तो आज के दिन के लिए अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कल का लो. अगर कल का लो जाएगा विच मीन्स जो कल की वीकनेस है इट इज़ कंटिन्यूइंग. द मार्केट इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग प्रीवियस डेज क्लोज एज वेल एंड इट इज़ कंटिन्यू टू फॉल. ठीक है, बट व्हाट हैज़ हैपेंड, वी सॉ अ रिवर्सल. ओके, वी सॉ अ रिवर्सल. We saw a reversal until the level we drew yesterday. ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर कोई रिस्की बंदा होता है और वो लॉन्ग करता है ये देख करके कि कैंडल 9 EMA के 10 EMA के ऊपर सस्टेन करने लगा, प्रीवियस डे लो को स्टॉप लॉस मान करके अगर वो लॉन्ग भी करेगा तो भी वो टारगेट कहाँ तक रखेगा, यहीं तक रखेगा. बट हमने we have drawn this level and will be utilizing this level today by shorting the market when the market approaches this level. तो यहाँ से अभी अपन शॉर्ट करेंगे. कब करेंगे, जब मार्केट यहाँ पर आके कोई नेगेटिविटी शो करेगा, हाई बनना बंद हो जाएगा, या कोई ऐसा डोजी टाइप का कैंडल अपने को दिखेगा जो यहाँ पे है, या हमें लगातार क्लोजिंग मिलने लगेगी 9 EMA के नीचे, विच मीन्स दैट द मार्केट इज ट्रेंडिंग बिलो द एवरेज प्राइस ऑफ द प्रीवियस 9 और विच एवर EMA यू आर फॉलोइंग. ठीक है, तो अभी अगर अपन यहाँ पे भी आज शॉर्ट किए होते, यहाँ पे अगर शॉर्ट किए होते इसे स्टॉप लॉस मान करके, तो अपना टारगेट क्या होता, अपना टारगेट होता ये जोन. अगेन आई एम सेइंग जोन बिकॉज दिस विल बी ऑफ 50-60 पॉइंट्स. ओके, ये कुछ एक स्पेसिफिक लेवल नहीं होता है. यूट्यूबर्स दे देते हैं ना आपको 15,556, 24,508. नो, ऐसा नहीं होता है. देयर इज नो पिन पॉइंट लेवल इन द मार्केट बिकॉज देयर इज नॉट वन सिंगल पार्टिसिपेंट हु इज प्लेइंग द गेम. ठीक है, तो अभी के लिए वी हैव दिस as a area of interest and an area of interest below 50-60 points. ठीक है, so now mark this level on your chart and then ये अपन ने शॉर्ट किया, शॉर्ट करके यहाँ तक we kept our target until इस जोन तक. तो ये है बाई जोन, ये है सेल जोन. to make it look different we can color it green and ऊपर वाले को we will color it red. ठीक है, तो अभी कल के लिए भी ये दोनों लेवल अपने लिए इम्पॉर्टेंट है. आज मार्केट ने ऊपर और नीचे दोनों का लेवल दिया, दोनों को कंफ्यूज किया, सेलर्स को भी और बायर्स को भी. कुछ लोग यहाँ से बुलिश हो गए होंगे कि भाई अब तो 25,000 गया, अब फिर कुछ लोग यहाँ से बेरिश हो गए होंगे कि नहीं यार 25,000 नहीं जाएगा, अब तो 24,000 आ जाएगा. तो ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस. 50, 60, 70 पॉइंट में मार्केट चलता है और आपको रियलिस्टिक होना है. यू नीड टू प्ले बिटवीन 75, 80, 90 पॉइंट्स. यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट. या और इफ़ यू आर ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस that is also fine because you never know how many points market is going to give. But on a general basis I would recommend 75-80 points का मोमेंट अगर आपको इंडेक्स पे मिलता है और आप एट द मनी प्रीमियम लेते हैं तो आप समझिए 30 से 40 पॉइंट आपको प्रीमियम पे मिल जाएगा, जो कि काफ़ी है. ठीक है, आप धीरे धीरे इस पे काम कीजिए, फिर यू कैन इंक्रीज योर क्वांटिटी. स्टार्ट विथ एक क्वांटिटी और फिर आगे बढ़िए. तो ठीक इसी तरह से हम लोग कल देखेंगे. हम लोग अब बाज़ार को शॉर्ट करेंगे व्हेन वी सी एनी नेगेटिविटी गेटिंग फॉर्म्ड एट दिस लेवल. और अगर ऐसा हो जाए कि ये बाज़ार इस लेवल को तोड़ दे और जब ये वापस से यहाँ पर आएगा, इधर कहीं आएगा, तो और हमें प्राइस एक्शन में कुछ नेगेटिविटी दिखेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल्स जो है वो क्लोज होने लगेंगे आपके EMA के नीचे, तो आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं. और अगर यहाँ से आपको ऐसा दिखेगा कि कैंडल जो है ऊपर क्लोज होने लगा है 9 EMA के या जो भी EMA आप फॉलो करते हैं, तो देन यू कैन टेक अ कॉल अंटिल हियर.
but tomorrow is expiry, so I would suggest you should not deal with the contracts expiring tomorrow. You should deal in contracts of the next expiry. Okay, if you have any question, please write it down in the comment below. I'll try to answer it, and we'll see in the next video. I'll keep this these levels like this on my chart, and tomorrow we'll discuss what happened and how we reacted to what's happening. Yeah, until then, take care. Jai Hind.